Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, some of you are preparing for interviews for RRBs, and coming days you may be appearing for IBPS and SBI interviews also. So, yesterday, Government of India announced the cut in diesel as well as petrol excise duty. And today, now some state governments have also announced decline in VAT. For interview point of view, the question is whether this is enough, whether this will give the relief to the consumer that is much needed. For that, we have to understand and base our answer on some facts. At present, petrol has excise component of 32.9 rupees per liter. Diesel has component of 31.80 paisa per liter. That means this is the loading per liter over and above the price based on international crude price. Besides this, states also levy the VAT. So in fact, the real price that consumer has to pay increases multifold. If we look at the earlier regime period for petrol and diesel, not only excise and VAT were very, very low, but government was used to give the subsidy on these two items. And due to this subsidy as well as low level of excise and VAT, consumer was able to get petrol and diesel at affordable price. So in every economy, important thing is the role of government is to make available goods at affordable price. If income of people is not rising and the price of certain commodities is rising, it will become unbearable. And once it become unbearable, it start hurting the economy. And that we have witnessed in recent days. With the massive rise in price of petrol and diesel has led to extraordinary rise in prices of all essential commodities, and that is affecting the common man. So from interview point of view, your answer should be based on the facts. If government forgoes the entire excise on diesel and petrol or bring it to a very, very low level, and also introduce the subsidy, then only we can reach a reasonable level of price as far as petrol and diesel is concerned. So the yesterday's step is just a beginning. It is not end, because government has to forego more revenue because there is no other option. In my earlier video, I indicated that if prices are to be reduced, the only way is the central government should cut the excise duty. And yesterday this has happened. I still say government will be forced to cut it further because these prices are unsustainable. International prices are rising and there is no scope that they will come down in recent future or in a hurry. In such situations, if we look at the history, the government was used to manage even the petrol and diesel prices when crude was 120 per barrel. And at that time, then government was used to give the subsidy and to keep excise on petrol and diesel at very, very low level because this is an essential commodity. So, your answer should be based on this thing. It is the duty of the government to bring down the prices of diesel and petrol to a level that is affordable. And what is affordable? That government has to put a real yardstick that is related to income of people. If unrealistic rates are there, it is going to hurt the economy. It is going to hurt everyone. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आरआरबी इंटरव्यू के एंगल से पेट्रोल डीजल की प्राइस एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है. अब इसके अंदर मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने उस समय इंडिकेट किया था कि एक ही रास्ता गवर्नमेंट के सामने है
इनकी प्राइसेस को मैनेज करने का वो है एक्साइज को कट करना। अब कल आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने एक्साइज कट की है 5 रुपये और 10 रुपये से पेट्रोल और डीजल पे। उसके साथ साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने आज वैट में अनाउंसमेंट की है कट करने की। पर क्या ये अनफ है? आंसर है नहीं। क्योंकि यदि हम देखें कि आज की डेट में इस कट से पहले पेट्रोल के ऊपर टोटल एक्साइज है 32 रुपये 90 पैसे पर लीटर, डीजल पे 31 रुपये 80 पैसे। जब इंटरनेशनल प्राइजेज इतनी हाई है और उस हाई प्राइस के ऊपर यदि गवर्नमेंट भी हाई टैक्स लगाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो नेचुरली जो प्राइस निकल के आती है वो ऐसी हो जाती है जो आम जनता की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाती है। और जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस अफोर्डेबल लिमिट से बाहर होती है, अल्टीमेटली वो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है बाकी कमोडिटी की प्राइस के ऊपर। आपने देखा होगा जिन दिनों में तेजी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, उन्हीं दिनों में बेतहाशा दूसरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई और उससे जो आम जनता है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आया है। अब यहाँ पर रोल आता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे मेज़र करती है, कैसे समझती है और कैसे स्टेप्स लेती है। अगर हम हिस्ट्री से इसका लेसन लें तो आप देखेंगे कि एक समय के अंदर $120 पर बैरल क्रूड की प्राइस पहुंच गई थी। उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने दो रास्ते अपनाए थे। एक तो एक्साइज और को बेयर मिनिमम लेवल पे ले आए थे और साथ में सब्सिडी दी। क्योंकि यदि हम लोगों को ये एसेंशियल कमोडिटीज अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं दे पाते हैं, तो ये नहीं है कि हमने प्राइस कम कर दी तो कोई सेक्रीफाइस कर दी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि यदि लोगों की आमदनी नहीं है और वो किसी चीज़ को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार का रोल आता है कि उसको कैसे प्राइस को नीचे लाया जाए कि वो अफोर्डेबल रेंज में आ जाए। तो अफोर्डेबल रेंज में लाने के दो ही तरीके होते हैं इकोनॉमी में। एक है या तो लोगों का इनकम लेवल को बढ़ाया जाए ताकि वो महंगी चीज़ें भी खरीद सके, और अगर इनकम लेवल नहीं बढ़ पाता है तो नेचुरल है हमें गुड्स की कीमतें गिरानी पड़ती हैं। और उसमें दो मेथड ही इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिव माने गए हैं। पहला है कम से कम टैक्स लगाना, और दूसरा अगर टैक्स घटाने के बावजूद भी कीमत अफोर्डेबल पे नहीं आ रही है तो उस पर सब्सिडी देना। मीन्स कुछ प्राइस गवर्नमेंट बियर करे और कुछ प्राइस कंज्यूमर बियर करे, ताकि उस समय का जो फेस है, जो वो बुरा वक्त है, वो स्मूथली निकल जाए और जनता पे भार ना पड़े। ये इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस समय जो आम व्यक्ति है उसको जो प्राइस है वो इतना पिंच कर रही है कि वो उसकी अफोर्डेबल लिमिट से बाहर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट मजबूर होगी कि और ज़्यादा रिडक्शन आने वाले वक्त में किए जाएं और सब्सिडी भी री इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचना पड़ सकता है सरकार को। तो ये इसी पर आधारित आप आंसर दे सकते हैं कि इसकी रेमेडी केवल यही है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। इंटरनेशनल प्राइस डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, और जैसे जैसे विंटर आएगी तो जितने भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ डीजल और पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और उस कारण ये माना जा रहा है कि अभी क्रूड की प्राइसेस और बढ़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो नेचुरल है सरकारों को अपने टैक्स घटाने पड़ेंगे, सब्सिडी भी शायद इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और टैक्स कलेक्शन के लिए दूसरे रेवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे, या टेम्परेरीली बारो करके उधार का आंकड़ा बढ़ा के मैनेज करना पड़ेगा। और जब अच्छा वक्त आता है जिस समय प्राइसेस गिर जाएंगी, उस समय इसको जनता से लिया जा सकता है, जो इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं। क्योंकि यदि आप सारा बर्डन जनता पे डाल देते हैं तो नेचुरल है वो उसको बियर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मेरी आमदनी 5,000 है तो नेचुरल है मैं 5,000 से अधिक के गुड्स नहीं खरीद सकता। तो धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, उन चीज़ों को खरीदना ही छोड़ दूंगा, और उसका असर बहुत बुरा होता है इकोनॉमी में। और यही वक्त होता है जब गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है, सब्सिडी देनी पड़ती है,
टैक्स रिडक्शन करने पड़ते हैं और जनता को गुड्स को अफोर्डेबल प्राइस पे दिलाना होता है। यही सरकार का काम होता है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस पे आप बेस करके आंसर बना सकते हैं। मैंने इनपुट्स दे दी हैं। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि जीएसटी में क्यों नहीं आ सकता। जीएसटी में लाना इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है इसके टैक्स को बेयर मिनिमम लेवल पर ले जाना। गॉड ब्लेस यू ऑल।